السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس، ناول پہ درد پیا ریٹن بائی ہانیہ کی ایپیسوڈ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی تنگ سے محلے کے سرے پر آ رکی تھی، کیونکہ گاڑی اس تنگ سے محلے میں آگے تک نہ جا سکتی تھی۔ ہاتھ نے پھرتی سے گاڑی سے نکل کر گاڑی کی ڈگی سے فولڈنگ ویل چیئر نکالی، جو کہ وہ اسپتال سے گھر آنے سے پہلے خرید کر لایا تھا، اور حجاب کا استفسار کرنے پر احد نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ وہ اس ویل چیئر کے پیسے بھی اس بل کی رقم میں شامل کر چکا ہے جو حجاب کی طرف واجب العطا ہے، اور یہیں پر حجاب خاموش ہو گئی تھی۔ وہ حجاب کی مدد بھی اس طریقے سے کر رہا تھا کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ اس کی مدد بھی بخوشی قبول کر لے۔ ویل چیئر سیٹ کرنے کے بعد اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا، جہاں حجاب کے ساتھ اس کے ابا موجود تھے۔ احد نے احتیاط کے ساتھ انہیں گاڑی سے نکال کر ویل چیئر پر بٹھایا اور انہیں گھر چھوڑنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے دادی، پھر میں چلتا ہوں۔ حجاب اور اس کے ابا کو گھر پہنچا کر اس نے دادی سے اجازت لینا چاہی تو وہ ڈپٹ کر بولی، ارے بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رات سے ہمارے ساتھ ہسپتال میں خوار ہو رہے ہو۔ میں تو پھر بھی ہسپتال سے گھر آ گئی تھی، پر تم نے تو ایک منٹ کے لیے بھی حجاب کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب تم کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ کھانا بس تیار ہے، میں لگانے والی ہوں۔ چلو شاباش، اندر چلو، دادو نے اپنائیت سے کہا۔ پر دادو، میرا یہاں رکنا شاید مس حجاب کو پسند نہ آئے۔ ارے بیٹا، وہ کیوں بھلا؟ دادی نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ چونک تو حجاب خود بھی گئی تھی کہ بھلا اس کی کون سی حرکت سے احد کو ایسا محسوس ہوا۔ یہ تو آپ کی مروت ہے دادو، جو آپ نے کھانے پر روک لیا۔ پر حجاب نے تو خالی پانی کا بھی نہیں پوچھا، حالانکہ آپ جانتی ہیں انکل کو گاڑی سے نکال کر گھر تک لانا کس قدر محنت طلب کا کام ہے۔ دادو، کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر کھانا کھا لوں گا۔ آنکھوں میں نائی سی شرارت لیے وہ مخاطب تھا، پر حجاب پر گھروں پانی پر گیا۔ حجاب دادی کی تنبیہی آواز پر مزید بوکھلا گئی۔ نہیں دادی، وہ میں ابھی پوچھنے ہی والی تھی، آپ پلیز تشریف رکھیں، میں ابھی پانی لاتی ہوں۔ بوکھلاہٹ میں اپنی صفائی پیش کرتی وہ چپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، دادی سے لے کر اپنے گھر کی چھوٹی سی بیٹھک میں آ گئی تھی۔ ارے بیٹا، حجاب ابھی نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اتنی عقل نہیں نا، اس لیے تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا۔ دادی اپنے تو احد کا دل حجاب کی طرف سے صاف کر رہی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا کہ حجاب کی باتوں کو تو نہیں، ہاں البتہ وہ اسے ضرور دل پر لے بیٹھا تھا۔ ادھر بیٹھے آپ شاہان۔ ہادی نے لائبریری میں پہنچ کر خود ایک کرسی پر بیٹھ کر شاہان کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ شاہان مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تو کیا ٹاپک ہے آپ کے اسائنمنٹ کا؟ ہادی نے اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھ باہم ملا کر پوری فرصت سے شاہان پر فوکس کرتے ہوئے بولی، ٹاپک؟ وہ ٹاپک کو لمبا کہیں تو وہ بولا اس سے پہلے کہ ہادی کچھ کہتی۔ دو لڑکیاں اسے ملنے آ گئیں۔ وہ کھڑی ہو کر ان سے ملنے لگی اور شاہان کو کچھ وقت مل گیا آگے کی پلاننگ کے لیے۔ پہلے اس نے سوچا کہ چپ کر کے یہاں سے کھسک جائے، جب دوبارہ ہادی سے سامنا ہوا تو کہہ دے گا کہ اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ پر پھر ہوتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ میدان چھوڑ کر بھاگنا شاہان کی فطرت کے خلاف تھا۔ لیکن ابھی تو وہ پورا پھنسا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دماغ چلانے لگا کہ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے۔ جلدی سے کچھ سوچا اور اس نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میسج ٹائپ کیا، احد جلدی سے مس ہادی نے جو اسائنمنٹ بنانے کے لیے ٹاپک دیا وہ سینڈ کر۔ میسج سینڈ کر کے وہ بےتابی سے ٹیبل کی سطح کو اپنی انگلی سے بجاتا احد کے رپلائی کے انتظار میں تھا۔ اس نے ایک چور نظر ہادی کی طرف دیکھا، جو ابھی تک ان لڑکیوں سے بات کر رہی تھی۔ میسج کے الفاظوں نے ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے لمحے کے 10ویں حصے میں حجاب کے گھر اس چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھے احد کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس نے فوراً سے اپنا موبائل نکال کر میسج چیک کیا، خیریت یار، آج یہ سورج کدھر سے نکل آیا؟ میسج پڑھتے شاہان دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ جتنی جلدی کر رہا تھا احد اتنا ہی بات کو طول دے رہا تھا۔ شاہان نے ایک نظر پھر سے ہادیہ کو دیکھا، جو کہ اب ان لڑکیوں سے الوداعی مسافہ کر رہی تھی۔ شاہان تیزی سے میسج ٹائپ کرنے لگا، الو کے پٹے لفنگے، کمینے تو میرے سامنے آ، میں ذرا سر پھاڑوں، یہاں وہ شیرنی ننگی تلوالی میرے سر پر سوار ہے، تجھے مستیاں سوچ رہی ہیں؟ ٹاپک بتاؤ۔ میسج پڑھ کر احد کیسے چھوٹ گئی۔ میسج آیا، کس کے اسائنمنٹ کا ٹاپک پوچھ رہے ہو شاہان، میری کا یا اپنی کا؟ کیونکہ مس ہادی نے پوری کلاس کو الگ الگ ٹاپک پر اسائنمنٹ بنانے کو کہا ہے۔ میسج پڑھ کر شاہان اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مرو تم احد، اور دیکھنا تمہارے مرنے کی سب سے زیادہ بریانی میں نے ہی کھانی ہے، کمینہ خبیث۔ جی شاہان، تو کہاں تھے ہم؟ ہادی اب ان لڑکیوں سے فارغ ہو کر مکمل طور پر شاہان کی طرف متوجہ تھی، اور شاہان ہوک بنا ہادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مس ہادیہ، میرا ٹاپک۔ اسی وقت اس کا موبائل کی بپ بجی۔ اس نے وہیں ٹیبل پر پڑے موبائل پر اپنی شہادت کی انگلی سے میسج آن کیا اور میسج پڑھتے شاہان کھل اٹھا، کیونکہ احد نے اس کی اسائنمنٹ کا ٹاپک سینڈ کیا تھا۔ شاہان کی حالت ایسی تھی جیسے اسے اب تکلیم کی دولت مل گئی ہو۔ یہ تو مس ہادیہ، یہ میرا ٹاپک ہے۔
वो खुशी से चहकते हुए अपना टॉपिक बता रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा से अंजाम दे दिया हो। अच्छा, तो क्या पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके क्लियर नहीं है? पॉइंट्स को लंबा खींचते हुआ बोला। यकदम ही भरे हुए गुब्बारे में से हवा निकली थी और बैठे का बैठा रह गया था। जी, वो पॉइंट्स मैंने मोबाइल में सेव किया, मैं भी आपको देख कर बताता हूँ। हर वक्त इसे बहाना सूझ जाता है। ओके, जल्दी करें। आधे से कहती अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई। आहद, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट सेंड करो जल्दी। वैसे सेंड करके वो बेताबी से रिप्लाई का इंतजार करता। मोबाइल के भी बजते ही इसने आहद के सेंड के पॉइंट्स पढ़कर हादे को सुनाने शुरू कर दिए। पॉइंट्स नोट करके हादे से पॉइंट समझाने लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद शाहान के पॉइंट्स क्लियर हुए थे। शाहान, कल सबसे पहले मैं आपके असाइनमेंट की मुंतज़िर रहूँगी। हादे ने इसे सारे पॉइंट समझाकर कहा। जी मिस हादिया। हादे की बात सुनते वह पेपर पेंसिल संभालते हुए लाइब्रेरी से निकला। जैसे दफा 203 के तहत किया हादी कैदी रिहाई पाने के बाद भाई निकलता है कि हादे से कुछ भी न था कि फिर कोई पेंडोरा बॉक्स खोल लेती। लाइब्रेरी की धूल से निकलकर शाह ने खुली फिजा में खुलकर सांस लिया। इसके कानों से अभी तक धुआं निकल रहा था। आज का तजुर्बा इसके लिए खासा तल्ख था। मुस्तफ़ा की गाड़ी पहुंच में जाकर रुकी तो इस वक्त दिन के 9 बज रहे थे। वो बच्चे को एहतियात से उठाता, साथ में छोटा सा पेपर बैग उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर सामने ही पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। इनमें नजमा अप्पा और मुर्तज़ा भी शामिल थे जो कि गालबन सुबह ही आए थे। नजमा का चेहरा सूजा हुआ था जैसे वो कल सारी रात रोती रही हो, जबकि मुर्तज़ा के चेहरे पर चाहे खरख्तगी नुमा संजीदगी माहौल को मजीद गंभीर बना रही थी। इसे 1 मिनट लगा था बात समझने में। यकीनन वर्दा ने फिर से कहीं हंगामा किया था और मौजू नजमा आपा का बेऔलाद होना था। इसलिए आज वह यही किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहता था। हर कोई खाने से हाथ रोके से ही देख रहा था। वजह इसके हाथ में मौजूद वो नन्हा सा वजूद था। मुस्तफ़ा दिल खड़ा करता मुर्तज़ा की तरफ बढ़ा। मुर्तज़ा भाई, ये मेरा बेटा है और आज से ये आपका हुआ। मुस्तफ़ा ने वो बच्चे जाकर मुर्तज़ा की गोद में डाल दिया। हर कोई हैरान परेशान से सूरत समझने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफ़ा? मुर्तज़ा परेशानी से बोला। मुस्तफ़ा जानता था कि वो आगे क्या कहने वाले हैं। वो किसी का भी बच्चा अडॉप्ट करने के हक में नहीं थी। इनके ख्याल में औलाद सिर्फ वही होती है जो कि अपनी हो। इसी बात को लेकर नजमा आपा और इनमें बहुत बार झगड़ा भी हुआ, पर हर बार फतेह वही ठहरे। इसलिए इस बार मुस्तफ़ा अपना होमवर्क मुकम्मल कर गया था। वो इस वक्त किसी भी किस्म के हंगामे का मुतहम्मिल नहीं था। और ये है प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स। मैंने अपनी आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी है और जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता इसके केयर टेकर आप होंगे। मुस्तफ़ा की बात सुनकर मुर्तज़ा की आंखें फटी की फटी रह गई। मुस्तफ़ा ने इन्हें कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर जायदाद के पेपर्स इन्हें थमाए, क्योंकि वो जानता था कि भाई देख यही तरीका था जिसके बाद वो मुर्तज़ा का मुंह बंद कर सकता था, क्योंकि आजकल इसे पैसों की अशद ज़रूरत थी और घर आया दौलत किसे मंजूर नहीं होती। अरे मुस्तफ़ा, कैसी बातें कर रहे हो? आज से ये मेरा ही बेटा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी ये महरूमी भी दूर कर दी। और प्रॉपर्टी के पेपर्स को पकड़े खुशामदीद लहजे में बोला। यकदम बच्चे की रोने की आवाज़ पर मुर्तज़ा ने बच्चा नजमा की गोद में डाला। इसकी आंखों में भी एहसास तशक्कुर के आंसू थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुर्तज़ा इतनी जल्दी मान जाएगा। उसने बेसाख्ता बच्चे को अपने अंदर खींचा तो आंसू टूटकर इसकी आंखों से गिरे। इसकी माँ कहाँ है मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा की माँ ने उससे पूछा। बेटी को खुश देखकर वो भी अब मुतमईन थी। इसकी माँ नजमा आपा है जो कि आपके सामने बैठी। हाँ, अगर आप नीदा की बात कर रही हैं तो वह अस्पताल में से 3 दिन बाद छुट्टी होगी। वो इन्हें कहकर वहीं खड़े खड़े जूस पीने लगा था। मुस्तफ़ा मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी ये महरूमी भी ख़त्म कर दी। नजमा आपा रोते हुए इसके सामने आकर कह रही थी। बस आपा, क्या हो गया आपको? भाई हूँ मैं आपका, और भाई अपनी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। एक मैंने भी आपके लिए कुछ कर दिया तो कुछ अनोखा तो ना किया। मुस्तफ़ा ने बेसाख्ता ने अपने साथ लगाकर मोहब्बत और अकीदत से इनके साथ साफ किए। वहाँ हर किसी के चेहरे पर खुशियाँ थी। फिर भी पता नहीं क्यों मुस्तफ़ा के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। ठीक है अम्मी, मैं कमरे में जा रहा हूँ, कुछ देर रेस्ट करूँगा, बहुत थक चुका हूँ। ठीक है बेटा। वजह जज इस माहौल से भी छुटकारा चाहता था, इसलिए वहाँ से निकलता चला गया। डाइनिंग टेबल से कुछ फासले पर खड़ी 10-11 साल लड़की ने ये सारा मंजर देखा था और देखकर जहन की स्क्रीन पर महफूज भी कर लिया था। इसकी आंखों में फिल वक्त ये मंजर देखकर महज गुस्सा और तनक्कुर था। मोबाइल की तेज बजती ट्यून से इसकी नींद टूटी थी। इसने बंद आंखों से सिरहाने की इर्द-गिर्द हाथ मारकर मोबाइल तलाशना चाहा, पर तब तक मोबाइल की बेल बजना बंद हो चुकी थी। लाचारी से उठना ही पड़ा। वो बालों में हाथ फेरता हुआ उठा। पूरे कमरे में तारीकी कर आई तो वो अंदाजे से स्विच बोर्ड तक गया और स्विच टटोल कर लाइट चलाई। पूरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया। इसने वार क्लॉक की तरफ देखकर, जो कि शाम के 5 बजे का ऐलान कर रहा था। एक पूरा दिन और रात के बाद वो थका हारा घर आया था और आते ही नीदा की तबीयत खराबी की वजह से वैसे ही इसे लेकर हॉस्पिटल चला गया था। अस्पताल में सारी रात गुजार कर बच्चे की पैदाइश के बाद वो प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने बेटे के नाम करवाने गया था और फिर जब वो घर लौटा तो थकन से इसका बुरा हाल था। शायद यही वजह थी
कि वह इतनी देर तक सोता रहा था, अब भी इसकी आंख न खुलती अगर इसके मोबाइल पर कॉल न आती। अभी वह सब सोच रहा था कि बेल एक बार फिर से बजने लगी। इसने उठकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया, अस्पताल से खालाबी की कॉल दी। मुस्तफ़ा ने एक गहरी सांस खींचा कर कॉल रिसीव की। जी खालाबी, कहिए क्या बात है, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? वो अपने अंदरूनी खलबशाह से छुटकारा पाते हुए खुद को नॉर्मल पोज करता पूछ रहा था। बेटा नीता को होश आ गया है और जब से होश आया है इसने अपने बेटे से मिलने की रट लगाई हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की इसे टालने की, पर जब बात मेरे बस में ना रही तो मैंने इसे तुम्हारा पैगाम दे दिया और साथ में ये भी बता दिया कि तुम अपने बच्चे को साथ ले गए हो। तब से वो बिन चल मछली की तरह तड़प रही है। बेटा मुझसे इसकी तरफ देखी नहीं जा रही। खालाबी की खुद की आवाज़ में नमी आमेजिश थी। तुम खुद इसकी हालत देख लो तो तुम्हारा कलेजा मुँह को आ जाए। वो अपने बेटे के पैर में कोई उजड़ी हुई दीवानी मालूम होती है। वो किसी से संभल नहीं रही थी और डॉक्टर के मुताबिक इसका इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल और हलचल खुद इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए उन्होंने फिर से इसको सुकूनावा इंजेक्शन लगा दिया है। बेटा तुम एक बार इससे मिल लो, तुम शायद बेहतर तरीके से हालात को हैंडल कर सको। मुस्तफ़ा लब खींचा खालाबी की बातें सुना था और इसी एक लम्हे के लिए तो वह डर रहा था कि कैसे नीता का सामना करेगा, कैसे इससे नज़रें मिलाएगा। क्या रोज़े मैशर इतनी जल्दी आ गया था? खालाबी मैं आज तो नहीं आ सकता, कुछ काम है मुझे। हाँ इंशाल्लाह कल ज़रूर आऊँगा, तब तक इसके लिए आप इसे ख्याल संभाल लें। वो कुछ सोचते हुए बोला और फ़ोन बंद करके फिर से किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। जब से शान आधे से अपने असाइनमेंट के पॉइंट्स क्लियर करके आया था तब से इसे अपने असाइनमेंट की फिक्र लगी थी। तब से वह सोच रहा था कि अब असाइनमेंट का क्या किया जाए। तभी इसकी नज़र सामने से आते अमजद पर पड़ी। वह सिंगल पसली आंखों पर खोल पर जैसा चश्मा लगाए, बालों को दाएं जानिब सेट किया, हाथों में किताबें उठाए जा रहा था। शाहान भागकर इसके पास आ गया। अरे चश्माटू कैसा है, तू कहीं दिखाई ही नहीं देता। शाहान ने इसके बाजू पर जोर से तप लगाते इसके कंधे के गिर्द अपना हाथ फैलाकर कहा। इस लड़के ने चौंक कर आवाज़ किसी में देखकर शाहान को देखकर मुस्कुराकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक शाहान भाई, आप कैसे हैं? अभी बस ठीक हो। अच्छा तुम ये बताओगे क्या तुमने अपनी भी शादी वाली असाइनमेंट मुकम्मल कर ली? जी भाई जी, वो तो मैंने कल ही जमा करवा दी। वो लड़का पुरजोर सा बोला, अरे वेरी गुड यार। अब एक काम करो, कल तक तुमने मेरी असाइनमेंट बनानी है इस टॉपिक पर और साथ में इस असाइनमेंट में ये पॉइंट्स भी इस्तेमाल करने हैं। शाह ने आते से क्लियर करवाए गए पॉइंट्स वाला सफ़ा पकड़ाया। वो लड़का बेचारगी से शान की शक्ल देख रहा था कि शान को ना करने का मतलब वो खूब समझता था। और ये रख लो यार, कुछ खा पी लेना। शाह ने 5,000 का खड़खड़ाता नोट इसकी जेब में डाला। नोट देख इस लड़की की बत्तीसी निकल आई। पर याद रखना कि असाइनमेंट ज़बरदस्ती होनी चाहिए। अरे आप फिक्र ना करें शाहान भाई, आपके असाइनमेंट एकदम परफेक्ट होगी। इस लड़के के जाने के बाद शाह ने बेफिक्री से अपने दोनों हाथ झाड़े कि खस कम जहाँ पाक। तब इसे सामने से मावराती दिखाई दी जो इसे देखकर जोर जोर से अपने हाथ हिलाते अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। उफ ये मुसीबत कहाँ से आ गई। इससे पहले कि वो मावरा इस तक पहुँचती शाहान दूसरी तरफ मुड़ा और पलक झपकते ही चलावे की तरह गायब हो गया। सारी रात मुस्तफ़ा की आंखों में कटती से समझ नहीं आ रही थी कि वो कल सुबह नीता से जाकर क्या कहेगा, कैसे इसका सामना करेगा। सारी रात वह एक के बाद एक सिगरेट फूंकता रहा। वो दिल से दुआ गो था कि इस रात की कभी सुबह ना हो, पर वक्त भी कभी किसी के लिए रुका है। ऐसे ही रात अपने वक्त पर गुजरी थी और रात की हेबत नाकी को दिन का उजाला खा गया था। देखते देखते सूरज सर पर पहुंच गया था और तभी बार बार अस्पताल से खालाबी की फोन कॉल्स आना शुरू हो गई थी। चारों नजारे इसे उठना ही पड़ा था। अस्पताल पहुंचकर वो काफ़ी देर तक निदा के कमरे के बाहर खड़ा अंदर जाने के लिए अपनी हिम्मत मुजतमा करता रहा। बिलाखिर कोई सोचते हुए भारी होते कदमों के साथ वो कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही वो बैठ पर तकियों के सारे नीम दराज सी दाएं हाथ पर अभी भी ड्रिप लगी हुई थी। बुजड़ी हालत में नाक की सीध में दुनिया मापने से बेखबर दीवार पर कोई तलाश कर रही थी। पटरी सदा होंठ, आंखों के गिर से हल्के जर्दी माय रंगत हल्से बिखरे बाल, यूं बैठी हुई वैसे कोई दीवानी महसूस हो रही थी। इसे इस हालत में देखकर मुस्तफ़ा का दिल कटने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नीदा ने दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ खड़े मुस्तफ़ा को देखकर इसमें एक बिजली सी भर गई। वह एक झटके से उठी और झटके से उठने से इसके लगे कच्ची टाँकों से दर्द की ठेस सी उठी थी और वह वहीं कराकर बैठ गई थी। लेकिन अगले ही पल वह इन दर्द की ठेसों को नज़रअंदाज करती उठी थी और एक झटके से अपने ऊपर ओढ़ाई सफ़ेद चादर को फेंक कर नंगे पाँव जाकर मुस्तफ़ा के रूबरू खड़ी हो गई। मेरा बेटा कहाँ है मुस्तफ़ा? मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरा बेटा है। निदा इसे इसके गिरे बाँह से पकड़े झंझोड़ कर पूछ रही थी और मुस्तफ़ा वो बेबस सा पीछे खड़ा इसके कमज़ोर आवाज़ सह रहा था। को बहरहाल वो हक पर थी। मुझे मेरा बेटा चाहिए मुस्तफ़ा, दे मुझे मेरा बेटा, वरना कसम खुदा की मेरा रब आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरा बेटा। वो मुस्तफ़ा के सीने पर मुक्के बरसाने के बाद अपने कमज़ोर हाथों से इसकी गर्दन पकड़ चुकी थी।
मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी आपको मुस्तफ़ा, मुझे मेरा बेटा दे। हमेशा से चुपचाप और दबों से रहने वाली लड़की मैं इस वक्त न जाने इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि मुस्तफ़ा की गिरबान पकड़े खड़ी थी। शायद क्या एक माँ कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती, इसलिए रोते रोते इसकी हालत गैर होने लगी थी। वो अपने पेट पर हाथ रख के दर्द से दोहरी होती जा रही थी, पर अभी भी हिम्मत आने को तैयार नहीं थी। मुस्तफ़ा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में नमी को पीछे धकेला और जब्त की दाव को छूते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। इसका चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने से निदा ने यकदम इसका बाजू खींचकर इसका रुख अपनी तरफ किया। मेरी तरफ देखकर बात करे मुस्तफ़ा। वो एक बार फिर से अपने दर्द को नज़रअंदाज के रूबरू थी। वो आज किसी सूरत से बख्शने के मूड में ना थी। निदा, वो मेरा बेटा है, मैं इसके साथ जो मर्जी करो। वो आपका बेटा कैसे हो गया मुस्तफ़ा, कैसे हो गया वो आपका बेटा? मुस्तफ़ा इसे चुप करवाने की खातिर गरज कर बोला था, पर निदा इसकी बात काटते मजीद गरज कर बोली। इतना ऊंचा बोलने से यकदम से खांसी का दौरा पड़ा था। आपको तो बामुश्किल 1 माह पहले मालूम हुआ था कि आपकी कोई औलाद भी इस दुनिया में आने वाली है। आवाज़ में पहले सी गरज की बजाय इल्तिजा सी मटाई थी। और वहीं पेट पर हाथ रख के दर से दोहरी होती बैठ के पायती का पकड़े नीचे बैठती चली गई। आपने तो अमेरिका जाने के बाद एक बार मुड़कर भी ना देखा था मुस्तफ़ा। मैंने इस बच्चे को नाम अपनी कोख में उबाला है, हर दिन इसके तस्वुर के साथ गुजारा है, और आपने इसे मेरे लिए हमेशा के लिए एक तस्वुर ही बना दिया। वह बैठ के पायदान के साथ सर टिकाई सिसक रही थी। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस बात को कबूल कर लो निदा, कि शायद ये बच्चा तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। मुस्तफ़ा की बात सुनकर निदा बेबसी से फूट फूट कर रो दी। यूँ टूट कर रोने से इसकी तबीयत मजीद खराब होने लगी थी और रोते रोते वह वहीं होशो होश से बेगाना हो गई थी। इसके बेहोश होते ही एक साइड पर खामोशी से आंसू बहाती इन दोनों की बातें सुनते खाला भी दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गई थी। डॉक्टर्स ने आते ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। मुस्तफ़ा भारी दिल के साथ तेज तेज कदम उठाता अस्पताल से बाहर जा रहा था। आज इसके दिल पर इस कदर बोझ था कि इसे लग रहा था कि इसका दिल फट जाएगा। पार्किंग में अपनी गाड़ी में पास आकर वो ऊंचा लंबा मर्द अपना जब्त खो बैठा था और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ऊंचा लंबा मर्द निदा के दुख पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना निदा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। वो स्टीयरिंग से सर टिकाए खुद से पे बड़बड़ा रहा था। अगले दिन सुबह ही सुबह शाहान अमजद से अपने असाइनमेंट लिए यूनिवर्सिटी मौजूद था। सबसे पहले इसने असाइनमेंट पिन पॉइंट्स की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए अमर से इन्हें पढ़कर देखा और फिर मुतमईन होकर हादिया का वेट करने लगा। जाहिर से यूनिवर्सिटी में हादिया की मौजूदगी का पता चला, वो इसको ढूंढने लगा। फिर आखिर से लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिली गई। शाह ने कुछ देर तक इसके फारिग होने का इंतजार किया। इसके फारिग होते ही वह खुशी से चहकता हुआ असाइनमेंट लिस्ट तक पहुंचा। यही मेरी असाइनमेंट मिस हादिया। शाह ने हादिया के सामने जाकर इससे अपनी असाइनमेंट पकड़ाई। हादिया वहीं कुर्सी पर बैठकर असाइनमेंट देखने लगी। हादिया ने इस हाथ के इशारे से बैठने को कहा। शान, माशाल्लाह से आपके असाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त है। शायद कि क्लास में किसी और स्टूडेंट्स की असाइनमेंट इतनी अच्छी हो। छोटी से छोटी बात को भी इसमें क्लियर की गई है। आधे असाइनमेंट के सफ़हात पर फोकस रखते हुए तज्जिया कर रही थी। अपनी तारीफ सुनकर शान खुशी से मजीद फैल कर बैठ गया था। लेकिन आधे के लेकिन कहने पर शान एकदम चौंका, टेक छोड़कर सीधा होकर बैठ गया। लेकिन क्या मिस हादिया? लेकिन ये कि मिस्टर शान, वो अब शान की आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। मैं अगली दफ़ा मुंतज़िर रहूँगी कि आप अपने जहन और हाथ से बनी असाइनमेंट को देखने के लिए। भले ही वो फिर असाइनमेंट जैसी अच्छी और परफेक्ट ना हो, पर इसे देखकर मुझे खुशी होगी। जब बात सुनकर शान का दिमाग वक्त से उड़ गया। मतलब? वो बेयकीनी से महज इतना ही बोल सका। जो मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो मतलब आप भी अच्छे से समझ चुके हैं और मैं भी। उम्मीद है कि आप अगली दफ़ा मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे और मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अपनी बात मुकम्मल करती हुए शान को होंठ पर छोड़कर मुतवाज़न चाल चलती लाइब्रेरी से बाहर चली गई। इसके जाते शान ने अपने मुंह पर हाथ फेर कर एक गहरी सांस खारिज की। उफ़ अल्लाह, क्या चीज़ है ये मिस हादिया? भूतनी ना हो तो सब कुछ पता चल जाता है इसे तो। कैसे बच्चे को नर्वस कर दिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। वो बड़बड़ाता हुआ अभी तक अपने चेहरे को थपथपा कर रिलैक्स कर रहा था। अरे कौन है भाई? आ रही हूँ आ रही हूँ। दरवाजे पर होते मुसलसल दस्तक की आवाज़ पर दादी अपनी लाठी टेक कर आहिस्ता आहिस्ता ऊंची आवाज़ में बोल रही थी ताकि आने वाले की तशबीह हो सके। दादी को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वहाँ इनके घर कौन आ सकता है, क्योंकि दोपहर का वक्त होने की वजह से सूरज समाने पर था और हर तरफ भूख का आलम था। और सबसे बड़ी बात कि हिजाब को मिलने वाला भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके मिलने वाले तकरीबन सभी हिजाब की टाइमिंग से वाकिफ़ थे कि वह इस वक्त यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से अकेडमी पढ़ाने जाती थी, जहाँ से इसकी वापसी शाम तक होती थी। यही सब कुछ सोचते हुए दादी ने बाहर का दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े औरत को देखकर चौंक गई, जो कि दोनों हाथों में फ्रूट्स की छापर पकड़े बाजू से अपने चेहरे पर उमड़ आने वाले पसीने को साफ कर रहा था। अरे हाथ बेटा, तुम आओ, अंदर आओ, बाहर तो बहुत गर्मी है। दादी से
यूं यकदम फिर से अपने घर इतने सामान के साथ आते देखकर बौखला गई थी। जी दादू बस यहाँ से गुजरा था तो सोचा अंकल की खैर खैरत मालूम करता चलो। दादी ने उसे कमरे में बिठाकर पंखे की फुल स्पीड कर दी थी। अरे क्यों नहीं बेटा, जब मर्जी आओ, सो पा रहा हो, तुम्हारा अपना घर है। इस दिन से दादी हाथ के उसने क्लाक से अच्छी बन के गर्विता हो गई थी। दादू ये कुछ फ्रूट्स हैं अंकल के लिए। हाथ बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, इन सब की क्या जरूरत थी भला। दादी खफकी से इसे बोली। इससे बातें करने के दौरान ही वो इसे के लिए ठंडा ठा शरबत बना लाई थी। और थैंक यू वेरी मच दादू, कसम से बाहर बहुत गर्मी है। दादी की शरबत वाली ट्रे को टेबल पर रखते ही याद ने बगैर किसी तकल्लुफ के जग से जूस को ग्लास में ढेलकर पीना शुरू कर दिया। दादी इसकी सदा से मुस्कुरा दी। अंकल की तरह दादी, अब इनकी तबीयत कैसी है। आहद ने शरबत का खाली गिलास टेबल पर रखा। शुक्र है अल्लाह का बेटा, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। इस वक्त दवाइयाँ खा कर सो रहा है। तुम बताओ बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन होता है। दादी की बात पर एक फीकी से मुस्कुराहट आहद के होंठों को छू गई। दादू अम्मी अब्बू का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं हूँ और मुझसे छोटी 3 बहनें। 2 की शादी हो चुकी है, एक छोटी बहन होती है वो मेरे साथ। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही इसके पास से भी सबको दोष हो जाऊंगा। अल्लाह आसानी पैदा करने वाला बेटा। तुम अपने बारे में क्या सोचा है आगे। दादी की बात पर उसने चौंका दादी की तरफ देखा। मैं आज इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ दादू। मेरे घर में बड़ा कोई नहीं है और शादीशुदा बहनें भी इस वक्त अपने घरों में है, इसलिए मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कि मैं आपकी पोती हिजाब को अपनी शरीक हयात बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ। इसीलिए इस बारे में मैं हिजाब से कोई भी बात करने के बजाय मैंने सीधे स्वभाव से आपके सामने अपनी ख्वाहिश रखी। अगर आपको इस रिश्ते में ज़रा भी दिलचस्पी लगी तो फिर इंशाल्लाह मेरी बहनें मेरा रिश्ता लेकर आएंगी यहाँ हिजाब के लिए। आहद ने अपनी तरफ से दादी को कॉल करने के लिए दलीलें सोच रहा था, पर दादी इन पर तो जैसे कोई सख्त ही हो गया था कि दुआएं यूँ भी कबूल होती हैं। कब सोचा था उन्होंने कि घर बैठे बिठाई इनकी हिजाब के लिए इतना खूबसूरत रिश्ता खुद चल कर आएगा। तो क्या इनके रब ने इनकी इतनी जल्दी सुन ली। क्या वाकई रब गुनहगारों के भी सुनता है। उन्होंने चुपके से अपने बह जाने वाले आंसू की चादर के पल्लू में जज़ब किया था। जहाँ निदा को डॉक्टर ने तीसरे दिन डिस्चार्ज करने को बोला था, वहाँ इसकी तबीयत के पेश नज़र इसे 7वें दिन अस्पताल से छुट्टी मिली थी। इन 7 दिनों में एक पल के लिए भी मुस्तफ़ा इससे बेखबर नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन वो दोबारा इसका सामना करने की जरूरत भी खुद में पैदा नहीं कर पाया था। वो फ़ोन पर खाला बी के साथ राब्ते में था। इनसे निदा के बारे में पल पल की मालूमात लेता था। अगर ये 7 दिन निदा ने कांटों के बिस्तर पर काटे थे तो पुरसकून मुस्तफ़ा भी न था। 7वें दिन निदा को अस्पताल से छुट्टी हुई थी। इस दिन भी मुस्तफ़ा ने खुद इसे अस्पताल जाने की बजाय ड्राइवर को भेजा था। घर में निदा का इस्तकबाल हमेशा की तरह ही सर्द सा हुआ था। किसी ने भी इसके कराने का नोटिस नहीं लिया था, ना ही किसी ने इसका दुख महसूस करने की कोशिश की थी कि वो क्या खोकर आई है। इसके दिल पर कैसी क़यामत बरपा है। इन सब के लिए वो बस बनी में आई जज्बात से बेपहरा एक लड़की थी, जिससे कुछ भी कह लो ये इसकी सजा है। ये रफ्ता रफ्ता अपनी रफ्तार से गुजरने लगे थे। नीता ने भी अपनी इस महरूमी से समझौता कर लिया था, सब्र कर लिया था, या अपनी बेबसी के हाथों खामोश हो गई थी। बहरहाल जो भी था, इसे एक मुस्तकिल चुप लग गई थी। मुस्तफ़ा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि इसका निदा से सामना कम से कम हो। इस घर से वो रात देर से घर लौटता कि इसके आने से पहले निदा सो चुकी हो, लेकिन कई बार इसकी हालत की इंतहा न रहती कि आधी रात को भी निदा कमरे में न होती। कई बार वो इसे ढूंढने की जस्तजू में कमरे से निकालता और वो इसे खुले शहर में बने चबूतरे पर किसी बेजान मुजस्मे की मानत चांद को तकते पाता, जैसे वो इसमें किसी की तशबीह तलाश कर रही हो। और मुस्तफ़ा वो अपने अंदर इतनी हिम्मत महफूज पाता कि जाकर इसे सहारा देता या इसे वापस कमरे में चलने को कहता। कई बार वो मुस्तफ़ा के कमरे में आने से पहले सोई हुई मिलती। वो पूरी कोशिश करता कि कहीं ज़रा सी भी आवाज़ पैदा न हो जिससे निदा की नींद में खलल पड़े, पर वो भी अल्लाह की बंदी ऐसी थी या इसकी नींदें ही इस कदर उठ चुकी थी कि वो ज़रा सी आहट पाकर ही उठ जाती। मुस्तफ़ा की कमरे में मौजूदगी को महसूस करके वहाँ के कॉलकर से देखती और बगैर कुछ बोले से नज़रअंदाज करती दूसरी तरफ मुँह कर लेती। इसका यह रवैया मुस्तफ़ा का दिल चीर जाता, वो लब भींचता हुआ मंजर से हट जाता। मर्दा ने इस बार भी बहुत हंगामा करने की कोशिश की थी, पर हर बार की तरह इस बार इसकी एक न चली थी। अब नजमा की पोजीशन घर में काफ़ी मजबूत और मुस्तहकम हो चुकी थी। अब तो मुर्ज़ब भी लाडली बहन के वावेले पर कान न धरता था, क्योंकि नई नई प्रॉपर्टी मिलने का खुमार और कोई डूबते कारोबार को सहारा मिला था। इसके नज़दीक वर्दा बेवकूफ़ी कर रही थी। सारे ख़ानदान वालों की ज़ुबानें भी मुस्तफ़ा के इस फैसले से बंद हो गई थीं। अब भी नजमा वर्दा के पास बैठी से समझा रही थी, देखो वर्दा, तुम सिर्फ मेरी नंदी नहीं, मेरी छोटी बहन की तरह भी हो।
مجھے بہت عزیز ہو تم، دیکھو ضد چھوڑ دو، اس لڑکی کی حیثیت تو تم مصطفیٰ کی زندگی میں دیکھ ہی چکی ہو۔ مصطفیٰ صرف تم سے محبت کرتا ہے، اب بھی تمہارا طلبگار ہے۔ ضد چھوڑو اور ہاتھ بڑھا کر خوشیوں کو تھام لو، تمہارے مصطفیٰ کی زندگی میں شامل ہو جانے سے وہ مکمل طور پر اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضد اور انا کی جنگ میں خسارہ تمہارے حصے میں ہی آئے، کیونکہ اب تو اور کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہاں البتہ تم اپنی ضد کے ہاتھوں بہت کچھ گنوا دو گے۔ نجمہ اپنی بات مکمل کر کسی سوچا کے بغل میں بیٹھا چھوڑ کر خود جا چکی تھی۔ جاری ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر گئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔